Hello, everyone, and welcome to another edition of the Glass Academy Webinars 2026 presented in association with Ethos Empowers. This year, our overarching theme is Envisioning India at 2047, Building the Next Century of Progress. A theme that invites us to reflect on how architecture, materials, technology, and design thinking will collectively shape the future of India's built environment as we move towards a century of independence. As India's cities expand upward and outward, architects are designing in increasingly demanding conditions. Buildings today must respond to intense heat, harsh sunlight, seasonal monsoons, dense urban surroundings, and changing patterns of all living, all while remaining comfortable, energy efficient, and responsive to the people who use them every day. Today's session, titled Designing with Light: The Role of Glass in Climate Responsive Indian Architecture, looks at one of architecture's most powerful design elements, that is, daylight. When used well, light can transform a space, bringing in warmth, clarity, reducing dependence on artificial lighting, improving well being, and creating interiors that feel open, alive, and connected to the outdoors. But in a climate like India's, it must also be carefully managed to avoid glare, overheating, and energy loss. That is where glass becomes especially important. No longer just a transparent surface, glass today can be specified to control heat gain, filter harsh sunlight, preserve views, and support privacy without sacrificing openness. When chosen and detailed thoughtfully, it becomes a key material in climate responsive design, helping architects create buildings that are not only visually striking, but also comfortable, efficient, and deeply attuned to their environment. To help us explore these ideas, we are delighted to welcome architect Rajkumar Kumawat, principal architect and founder of Rajkumar Architects, Jaipur. With over 2 decades of professional practice, architect Rajkumar has established himself as one of India's leading architects, renowned for creating timeless residences and spaces that thoughtfully balance contemporary design with regional identity. His work reflects a deep understanding of light, materiality, context, and the experience of space. His unwavering commitment to craftsmanship, attention to detail, and design excellence has earned him recognition through the FOAID Award, while his work has been featured in leading publications, including Good Homes, Interior Exterior, Architectural and Builders, and Surfaces Reporter. We are delighted to have him with us today to share his perspective on designing with light and creating climate responsive architecture, and also exploring how glass can be an integral part of buildings that are not only high performing, but also timeless, contextual, and deeply human. Welcome, Architect Rajkumar. We're so glad to have you. Let's get started. Hi, Rebecca. Thank you. So, to begin with, sir, could you tell us about the design philosophy that guides your practice and how it has evolved over the years? अ, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन फिलोसॉफी को राजकुमार आर्किटेक्ट्स रिप्रेजेंट नहीं करता है। और जैसा तुमने बताया, हम लोग मेनली रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर में हैं। तो और मोटो इज़ कि हम एक कंफर्टेबल लिविंग स्पेस जो क्लाइंट को रहने के दरमियान अच्छा लगे, उसको हमेशा अच्छा फील हो, उसकी यूटिलिटी फुलफिल हो, ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि एक अच्छा घर उसको मिले जहाँ वो अपनी सारी फीलिंग्स को या अपने ड्रीम्स को ट्रू होता हुआ देख सके। तो हम इमोशनली कनेक्ट होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी एक डिज़ाइन फिलोसॉफी को हमने फॉलो नहीं किया। हाँ, न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एज बिकॉज ऑफ वो टाइमलेस है और लोग उसको उससे अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम केवल वही काम करते हैं। घर डिज़ाइन करते वक्त हमारा टारगेट ये रहता है कि घर जो भी हो वो आउटर एरिया से अच्छे से कनेक्टेड हो एज वेल एज इंटरनल यूजफुल भी हो।
तो कोई ना कोई हम एक एलिमेंट ऐसा पहले सोचते हैं कि भाई एक एलिमेंट ऐसा डालें और उसके सराउंड हम वो स्पेस डिजाइन करें। तो सम टाइम ये इंटरनल कोर्टयार्ड हो सकता है, सम टाइम कोई आउटर कोर्टयार्ड हो सकता है, सम टाइम कोई स्कल्पचर वाली, कोई विद स्कल्पचर कोई बड़ी वाटर बॉडी हो सकती है, कोई बड़ा अच्छा झरना टाइप फील बनाई हुई कोई चीज हो सकती है। तो ऐसे कोई एक एलिमेंट बना के उसके अराउंड बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो व्हेन यू फर्स्ट स्टेप ऑन onto a site, how do you understand and study उसका light conditions? Are there any particular observations, methods, or tools that you use before the designing part begins? डेफिनेटली गूगल लोकेशन से बहुत इजी हो गया है आजकल साइट को ऑब्जर्व करना, पर फिर भी साइट पर जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जब किसी भी साइट पर पहुंचते हैं तो आप उसके आसपास वाले प्लॉट्स को, कॉमन वॉल्स को आप देखते हैं कि वो किस तरह से बने हुए हैं। अगर कोई वहाँ पर नियर बाई गवर्नमेंट गार्डन बना हुआ है या कोई ऐसा व्यू है जहाँ से, जैसे जयपुर में हम हैं तो बहुत सारे एरियाज से नाहरगढ़ की पहाड़ी दिखती है, तो ऐसा कोई अच्छा व्यू है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप डिज़ाइन कर सकते हो, तो साइट विजिट करने का फ़ायदा रहता है। तो उसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, आप उनको फॉलो करते हुए सेटबैक्स किधर हैं, जिधर सेटबैक्स होंगे उधर से ही आपको लाइट लेनी होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम काम शुरू करते जी सर। और आपका इतना प्रैक्टिस पूरा जो जयपुर में रूटेड है, अ सिटी दैट हैज सच इंटेंस सनलाइट, हॉट क्लाइमेट एंड remarkable legacy of climate responsive architecture. So, how has Jaipur's climate and architectural traditions influenced the way that you design with daylight and incorporate glass into contemporary homes? हैं। मतलब जयपुर में अ, जन्म लेना है, जयपुर से ग्रो होना, मतलब किसी की भी में आर्किटेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक ऐसी आर्किटेक्चरल सिटी के सराउंड ही बड़े हुए हैं। आपने हमेशा अपने आसपास आर्किटेक्चर देखा है। और मेरे हिसाब से जयपुर वो शहर है जो दुनिया का सबसे ओल्ड डिजाइन आज भी कामयाब शहर है। इतनी चौड़ी सड़कें उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरा शहर क्लाइमेटली डिजाइंड है। स्मॉल कोर्टयार्ड्स हैं, फिर उनके बाद बड़े कोर्टयार्ड्स हैं। साउथ और वेस्ट साइड्स में नैरो गली दी हुई है, जिससे फिर उनके थ्रू आपने लाइट और वेंटिलेशन लिया हुआ है। एंड आज के ज़माने में तो हमारे पास ग्लास अवेलेबल है, तो हम लोग उससे बाहर विजन कोड्स विजन ले सकते हैं और कहीं भी हम ग्लास लगा करके और उसका उसी तरह का सॉल्यूशन करके काम ले सकते हैं। पर उस जमाने ये सब नहीं था, तो उन्होंने इंटरनल कोर्टयार्ड वाली डिज़ाइन शुरू करी और इंटरनल कोर्टयार्ड बनाया और मेन विजन वहाँ से लिया। और इंटरनल कोर्टयार्ड का टेम्परेचर बाकी सारे क्लाइमेट से ऑलमोस्ट हाफ होता है, तो वो हमेशा मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें रही। तो एक जयपुर के साथ में बड़ा होना, जयपुर में ये सारी चीज़ें देखना डेफिनेटली हमें सपोर्ट करता है। उसके अलावा केवल आर्किटेक्चर ही नहीं, आर्ट, जयपुर में बहुत सारा आर्ट है। मतलब वॉल आर्ट है, इनले फ्लोर इनलेज है, सीलिंग पेंटिंग्स है, जो आजकल बहुत इन है। अब जब हम बहुत हाई एंड क्लासिकल हाउसेस बना रहे हैं तो उन सब चीज़ों का भी हमें सपोर्ट मिलता है। जालीज हैं, झरोकाज हैं, so all the things we are using. That's great, sir. And speaking of daylight, which is such a big part of our discussion today, so beyond simply bringing uh, daylight into a space, how do you approach light as an architectural element? So, how do you use it to define spaces, maybe create hierarchy, and influence the way people experience a home? डेफिनेटली मैंने पहले भी ये बोला है कि कोई भी स्पेस है उसके साथ में अगर हमारा कोई ग्लास वहां पर हमने ऐड किया है, चाहे लिविंग रूम है, लाउंज है, बेडरूम है, हम ट्राई करते हैं वो ग्लास आपके घर में एक एक्स्ट्रा खूबसूरत व्यू दे। तो हम उसके सराउंड कुछ ना कुछ अच्छा डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, या कुछ डिजाइन करके उसके मतलब वाइसा वर्सा उस रिवर्स में वैसा डिजाइन करते हैं कि हमने कोई ऐसी स्पेस डिजाइन करी, उसके साथ में घर डिजाइन कर रहे हैं या लाउंज स्पेसेस डिजाइन कर रहे हैं, या फिर हमने कोई ग्लास दिया है तो हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि उसके बाहर कोई ना कोई ऐसी वाटर बॉडी या लैंडस्केप एरिया ऐसा कुछ आए, तो अगर वो बाहर दिखे तो एक उसको अच्छा विजन कोट मिले, प्लस आपका एरिया भी बड़ा दिखे। मतलब समटाइम्स अगर हम डिजाइन करते, मतलब प्लॉट साइज की भी लिमिटेशन होती है और
रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो एरिया बहुत छोटे और नैरो हो जाते हैं, तो ग्लास उस एरिया को बड़ा भी करता है आपको। जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और जब हम इंडियन कंडीशंस की बात करते हैं, द चैलेंज इज नॉट ओनली जस्ट ब्रिंगिंग इन लाइट बट कंट्रोलिंग its intensity, its direction, and its quality. So, how do you design facades and openings to transform this harsh sunlight into a comfortable and meaningful experience within any space? ये बहुत इजी है, मतलब कोई भी आर्किटेक्चर स्टूडेंट बहुत अर्ली इन सब चीज़ों को स्टडी कर लेता है। तो मैं कोई भी, मतलब ज़्यादातर आर्किटेक्ट जब बड़ा ग्लास यूज करते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि नॉर्थ साइड में या ईस्ट साइड में ही ग्लास यूज करें, ताकि बहुत ज़्यादा हीट या ग्लेयर आपके घर के अंदर नहीं आए। और अदर साइड में अगर आपको ग्लास यूज करना होता है, अगर साउथ साइड यूज कर रहे हैं तो आप लॉन्ग कैंटिलीवर के थ्रू आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, वेस्ट साइड कर रहे हैं तो आप लूवर्स के थ्रू में आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारी स्क्रीन्स, जालीज, मेटल स्क्रीन्स, ये सब अवेलेबल है। एंड मोटराइज मेटल स्क्रीन्स भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी वजह से पूरा ग्लास बिल्डिंग बनाना भी पड़ रहा है तो आप उसके आगे एक मोटराइज स्क्रीन्स लगा सकते हो। आप दुबई के साइड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सन का डायरेक्शन होता है, चेंज होता है, तो वो स्क्रीन्स चेंज होती है, वो लाइट उतनी ही अलाउ करती है जितनी अंदर सूदिंग लगे और वो अच्छा लगे उसमें। जी सर। और आपका एक प्रोजेक्ट है ग्लास हेवन विच या ब्यूटिफुली embraces transparency and natural light while remaining comfortable and climate responsive. So, what was the design vision behind that home, and how did glass specifically help translate that vision into reality? दैट बिल्डिंग इज अ फार्म हाउस एंड हमने वहाँ पर एक स्विमिंग पूल और लैंडस्केप एरिया डिज़ाइन करके 3 क्यूब डिज़ाइन किए। एक क्यूब के अंदर हम लोगों ने लिविंग, डाइनिंग एंड किचन प्रोवाइड किया, एंड 2 क्यूब के अंदर बेडरूम्स डिज़ाइन किए। एंड देखने में ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारा ग्लास लगा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। हमने केवल एक सिंगल साइड ग्लास लगाया, बाकी सभी तरफ बिल्डिंग कंक्रीट की बिल्डिंग है। एंड साउथ और वेस्ट में फिर हमने, जैसे बेडरूम है तो ड्रेस और टॉयलेट हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, लिविंग डाइनिंग है तो किचन एंड स्टोर्स वगैरह उस तरह प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि हीट को रिड्यूस किया जा सके अंदर आने से। और जब वो तीनों ग्लास तीनों क्यूब से बाहर दिखते हैं तो अंदर से बाहर देखते हैं तो भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एरिया है, और बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो भी वो एरिया बहुत खूबसूरत दिखता है, क्योंकि वो इंटीरियर पार्ट ऐसा लगता है लैंडस्केप के साथ मिक्स हो रहा है। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट इतना फेमस है और लोग उसको लाइक करते हैं। जी, वाकई में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था। और आपका एक और प्रोजेक्ट रियली स्टूड आउट टू अस, उसका नाम है दी आर्क एसेंस, where expansive glazing was thoughtfully balanced with layered balconies, self shading, cross ventilation, and landscape terraces. So, could you maybe walk us through how these strategies were developed together, ensuring that the home remains bright, comfortable, and climate responsive? आर्क एसेंस एक बहुत स्मॉल साइज प्लॉट है। जनरली इतने स्मॉल साइज प्लॉट्स पे हम लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप है जिसके मैं लगभग फैमिली आर्किटेक्ट टाइप हूँ, तो मैं उस ग्रुप के सारे ही काम करता हूँ। तो ऑल 3 साइड इज अ कॉमन वॉल देयर, मतलब तीनों तरफ ही कॉमन वॉल है, कोई लाइट और वेंटिलेशन आने की जगह ही नहीं है वहाँ पर। तो हमने कोर्टयार्ड्स और ये वहाँ पर डेवलप किए, या सामने लैंडस्केप एरिया डेवलप किए, लाइट एरिया, ऐसे एरियाज डेवलप किए जिससे घर के अंदर लाइट आ सके। एंड विजन कोर्ट्स बनाए। तो जो अब हम ग्राउंड फ्लोर पर एंटर होते हैं तो एंट्रेंस लॉबी के आसपास एक विजन कोर्ट है, फिर हम ग्राउंड फ्लोर पर एक ड्राइंग रूम है और एक गेस्ट रूम है, तो दोनों को देखता हुआ अगेन हमने एक लैंडस्केप कोर्टयार्ड बनाया। फर्स्ट फ्लोर पे जब वापस लिविंग एरिया है तो उसके लिए वापस फ्रंट में और बैक में 2 विजन कोर्ट बनाए। तो एंड और फिर जब छोटा घर है तो सब लोग बाहर बैठना भी चाहते हैं लैंडस्केप एरिया में, तो ऊपर एक टेरेस गार्डन हमने डेवलप किया। तो ये प्रोजेक्ट यंग आर्किटेक्ट्स के लिए, क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में छोटे प्रोजेक्ट ही सब लोगों के पास आते हैं, स्मॉल हाउसेज है, उनके लिए एक सीखने की चीज है कि आप एक छोटे प्रोजेक्ट को इतना लाइट कैसे बनाएं कि हर एरिया पर लाइट वेंटिलेशन भी आ सके और वो घर भी रिच बन सके। क्योंकि प्लॉट साइज कुछ भी हो, लेकिन हर आदमी का वो ड्रीम हाउस होता है, वो चाहता है वो सब कुछ उसको उसी जगह मिले।
जी सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने। और आपके कई सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ग्लास इज यूज टू फ्रेम स्पेसिफिक व्यूज एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द सराउंडिंग्स, जैसे ग्लास हेवन में भी किया है, आर्कसेंस में भी किया है। सो हाउ डू यू अप्रोच पोजिशनिंग glazed openings to shape what a person sees and experiences within a space? ग्लास, मुझे लगता है जैसे ग्लास नहीं होते होता तो मैं करता ही क्या, मतलब विदाउट ग्लास तो पॉसिबल ही नहीं था कुछ भी करना। अभी मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं, मेरे सामने वाली वर्क वो कंप्लीट ग्लास है और वो एक लैंडस्केप एरिया को देखती है। तो ये मेरे काम करने की स्टाइल को या मेरी डेली रूटीन को, या अगर कोई भी थोड़ा स्ट्रेस टाइप माहौल है तो उसको काम करने में बहुत हेल्प करता है। तो हम हमेशा ऐसे विंडो फ्रेम या ग्लास फ्रेम्स बनाते ही बनाते हैं जो उस स्पेस को बड़ा करें और एक लैंडस्केप और अच्छे व्यू वाले एरिया आपके घर के अंदर या आपकी स्पेसेस के अंदर मिक्स हो जाए और स्पेस बड़ी दिखे, आप काम फील कर सकें। ये हमारा स्टाइल है कि एक इस तरह के फ्रेम्स क्रिएट करो, उस फ्रेम के उन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग ही आप डिजाइन करो पर पूरे टाइम पर। और किसी वजह से वो वापस से कोई चीज मतलब वहां तक पहुंच नहीं पा रही है तो वापस आप एक अनदर कोर्टयार्ड डेवलप करो या अनदर स्पेस डेवलप करो, फिर वहां फ्रेम बनाने की कोशिश करो। बट ट्राई टू गिव आवर क्लाइंट, वी आर ऑलवेज ट्राई टू गिव आवर क्लाइंट a proper landscape frame in every area. जी सर। और स्पीकिंग ऑफ ग्लास, आजकल के बहुत सारे यंग आर्किटेक्ट्स व्हेन दे आर सेलेक्टिंग ग्लास, इट ऑफन फील्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम। सो बियॉन्ड एस्थेटिक्स, व्हाट आर द फर्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स दैट दे शुड ऑलवेज evaluate, and what are the parameters that you look into when you are selecting glass for a project? देखो, आज बहुत तरह के आजकल ग्लासेस अवेलेबल हैं एंड हीट रिफ्लेक्टिव ग्लास, मतलब ट्रांसल्यूसेंसी आपको कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, हीट रेशो, हीट रेशोज, ट्रांसपेरेंसी रेशोज, ये सब चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए ग्लास चूज कर सकते हैं। एंड हम लोग जब भी ग्लास यूज करते हैं तो as because of we are doing in a luxury kind of clientele base, our work is depend on, so we have a that kind of budget also। पर हम हमेशा मल्टी लेयर ग्लास ही यूज चूज करते हैं। आउटर लेयर जो ग्लास होती है वो हीट रिफ्लेक्टिव ग्लास हम यूज करते हैं। देन उसके बीच में एक स्पेस है जो हीट को अंदर आने से रोकता है। फिर अंदर वाले ग्लास जो है वो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है ताकि वो जो उसका फील है ग्लास का वो भी खत्म नहीं हो जाए। जो स्टूडेंट्स को या लोगों के पास ये भी ऑप्शन है जो रिफ्लेक्टिव ग्लास यूज करे, तो आजकल क्लियर रिफ्लेक्टिव ग्लासेस भी हैं, तो बाहर से देख करके आपको आइडिया भी नहीं लगता कि आपने रिफ्लेक्टिव ग्लास यूज किया है और आपका विजन भी खत्म नहीं होता। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आप अपने डायरेक्शंस और यूटिलिटी इन सबको देखते हुए, सिक्योरिटीज इन सबको देखते हुए ग्लासेस यूज कर सकते जी सर। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, हाउ डू यू नो दैट योर डे लाइट स्ट्रेटजी हैज ट्रूली प्रॉपरली वर्कड द वे यू वांटेड इट टू कम आउट? हैं। क्लाइंट का जब आगे से फोन आता है कि बोले सर आज हम यहाँ बैठे थे और हमने मून यहाँ से कैप्चर किया है, या बाहर बारिश हो रही है और हम यहाँ अंदर बैठ करके हम इसका ये फील ले रहे हैं, तो जब क्लाइंट उन स्पेसेस को यूज करता है और आपको वापस से अप्रिशिएट करता है वो स्पेस देने के लिए, वो स्पेस उनको प्रोवाइड करने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है। और आई थिंक रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर से जो जुड़े हुए लोग हैं या जो भी कंसल्टेंट है वो इसीलिए है कि ये बहुत इमोशनल फील्ड है। जब आपको ऐसे फीडबैक्स या ऐसे कॉल्स वापस आते हैं तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। जी सर, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। और एक और चीज जो बहुत अभी अप एंड कमिंग है वो है एआई और सिमुलेशन टूल्स। सो हाउ डू यू सी एआई एंड दी सिमुलेशन टूल्स चेंजिंग द वे दैट आर्किटेक्ट्स डिजाइन विद डे लाइट ओवर द नेक्स्ट डेकेड? आ, देखो, एआई 100% बहुत हेल्प कर रहा है। एआई से हर चीज़ की आपकी स्पीड बढ़ रही है। आप इजीली जान सकते हैं कि क्या आपको वो एरिया, मतलब पर्टिकुलर जो मटेरियल आप चूज कर रहे हैं वो सूट करेगा या नहीं करेगा। और आप उस लाइट के फील को आप देखना चाहें पहले तो लाइट के फील को पहले देख देख सकते हैं।
पर हमारे टाइम ये सब कुछ नहीं था, हमने ये सब चीज़ें ग्रो होते हुए ही सीखी है। तो हम लोग के हाथ में अभी प्रोजेक्ट्स, या अगर घर की बात करें तो इतना टिप्स पे है कि हमें पता है कि कहाँ कितनी लाइट लगानी है, या कहाँ से डे लाइट लेनी है, कहाँ एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करनी है, और उस लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, वो लाइट कहाँ गिरनी चाहिए। लेकिन यंगर जनरेशन के लिए ये सब सीखना बहुत क्विक होगा और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जी, और जो यंगर जनरेशन जो भी देख रहे हैं ये वेबिनार को, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग विद ग्लास फॉर क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर? डेफिनेटली देखो, उनके पास जो हमने फेस क्रॉस किया उससे बेटर ग्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, और फ्यूचर में और भी अच्छे सॉल्यूशंस उनके पास अवेलेबल होंगे। एंड उन सारे सॉल्यूशंस को दिमाग में रखते हुए, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, कोर्टयार्ड्स या आउटर स्पेसेस से कितनी हीट अंदर आ सकती है, इन सबको स्टडी करके यूज़ करने का उनके पास अच्छा मौका है। मतलब अगर वो थोड़ा भी टाइम देंगे और दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी स्पेसेस क्लाइंट को दे सकते हैं। जी सर। और ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए। एज इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स 2047, जो कि हमारा थीम है, द बिल्कुल। फोकस विल इंक्रीजिंगली शिफ्ट टूवर्ड्स बिल्डिंग्स दैट आर मोर क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव, रिसोर्स कॉन्शियस, and centered around human well-being. So, how do you see materials like glass evolving to support this next generation of Indian architecture? देखो, अ, हम कितनी भी बात करें, पर हमारे बाहर का क्लाइमेट या एक्यूआई, जो अब हम बड़े शहरों में रह रहे हैं या मतलब स्मॉल सिटीज़ में भी रह रहे हैं ना, तो वो एक वहाँ का जो एक्यूआई है और इंटरनल एक्यूआई है वो बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। एक एयर कंडीशनिंग स्पेस में रहना मजबूरी बन गई है आज हम सब लोगों की। तो ग्लास ही वो एक चीज है जिससे आपको फील दे सकता है। आप बाहर बैठ करके अगर वो एरिया ग्रीन भी दिख रहा है तो आप फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं। तो आपको ग्लास एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको वो फील दे भी रही है और आप अंदर बैठे हैं। डेफिनेटली ये मजबूरी है कि हम ग्रो होते हुए यहाँ आ गए हैं, और AQI जो है इतने खराब हो चुके हैं लेवल, कि बाहर का एयर पोल्यूशन जो है आप बाहर बैठने के लायक ही नहीं रहा है। तो आपने कितनी भी अच्छी स्पेसेस बना दी है, आप पर बाहर 10 15 20 मिनट से ज़्यादा आप उसमें बैठ नहीं सकते। तो एयर कंडीशनिंग स्पेसेस विद ग्लासेस आपको नेचर से हमेशा कनेक्टेड रखती है। एंड हम लोग तो देखो बहुत स्मॉल रेजिडेंशियल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत स्मॉल पार्ट है। तो रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग हमेशा क्लाइंट यूटिलिटीज से ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। एक क्लाइंट को उसका बेस्ट यूज़ हाउस मिले, वो वहाँ पर कंफर्टेबली रह पाए, उसकी यूटिलिटी फुलफिल हो पाए, यही हम लोग का टारगेट रहता है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें या मैं कुछ भी बोल लूँ, आने वाली जनरेशन को भी वही सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन, बट बिफोर वी रैप अप वी गोना हैव अ फन लिटिल quick round of rapid fire. So या श्योर। I will just ask a few short questions, and so you can just answer in one word or one sentence, and you can also explain why your answer is that. So here we go. What is one word that best describes glass? ट्रांसपेरेंसी। And if you could redesign one iconic building with today's glass technologies, which one would it be? इजिप्शियन पिरामिड्स। One city whose architecture never fails to inspire you. माइन सिटी जयपुर। One space that, in your opinion, benefits the most from glass. डेफिनेटली लिविंग रूम। Because your favorite way to use glass in a project. एज ए लैंडस्केप फ्रेम। And what is one glass innovation that you are most excited about? इसका आंसर होगा, मैं ऐसा ग्लास चाहता हूँ जो जितनी हमारी ब्रिक वॉल या इंसुलेटेड वॉल हीट के प्रति इंसुलेटेड है ना, ग्लास भी उतना ही इंसुलेटेड हो। तो फिर किसी भी आर्किटेक्ट को सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ग्लास कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है। तो ऐसा ग्लास हो फ्यूचर में कि वो कहीं भी लगा पाए। और मतलब आप सोचो अभी ऐसी बिल्डिंग में बैठे हो जो पूरा ग्लास का बना हुआ है,
और हीट से भी आप बचे हुए हो, तो इट विल बी अमेजिंग फॉर फ्यूचर। Gee, gee. We are also very excited about of all the innovations that are coming up, and Yes. those were some truly insightful responses. And with that, we come to the end of today's session. Thank you so much, Architect Rajkumar Kumawat, for such an engaging and insightful conversation, and for sharing your design thoughts, your approach to climate responsive architecture, and your thoughtful perspective on designing with light and glass. Thank you, Across Rebecca. Across today's discussion, one message stood out clearly, that designing with light begins long before selecting materials. It starts with understanding the site, responding to climate, studying the movement of the sun, and carefully shaping spaces around these natural forces. We explored how daylight can become an architectural element that defines spaces, enhances well being, and enriches the way that people experience architecture. We also discovered that glass is far more than a transparent building material. Through projects such as Glass Haven and the Arc Essence, we saw how, when thoughtfully integrated with passive design strategies like self shading facades, layered balconies, cross ventilation, and landscape, glass can enhance daylight, strengthen the connection between indoors and outdoors, and contribute to architecture that is both environmentally responsive and visually compelling. As India moves towards 2047, today's conversation also reminded us that the future of architecture lies in creating buildings that seamlessly balance performance, sustainability, innovation, and human experience, and glass will undoubtedly continue to play an important role in shaping that future. On behalf of Glass Academy and Ethos Empowers, thank you once again, Architect Rajkumar, for your time and for sharing your valuable insights with us so generously. Thank you, Rebecca. Thank you very much. And to our audience, thank you for joining us and engaging throughout today's session. We hope this conversation has inspired you to look at daylight, climate responsive design, and glass through a new lens. Do stay connected with us on Instagram and LinkedIn for updates, industry insights, and upcoming Glass Academy webinars. Until next time, thank you for joining us. Stay inspired, keep designing, and we will see you at the next webinar. Thank you.